respected principal ma'am, resource person of the day, Dr. Sachin Gupta ji, Thank Professor you. Vrinder Kumar, Head of the Department Commerce, Professor Narinder Pal Singh, Head of the Department Information Technology, faculty members, other distinguished faculty from other institutions, and my dear students, Namaskar. Today, on behalf of Depart on behalf of Department of Commerce, Business Administration and IT, Department of Govindgarh Public College, Alor Khanna, I, Professor Rajesh Kumar from Department of Govindgarh Public College, Alor Khanna, welcome you all in the webinar on the topic Digital Entrepreneurship, Developing Digital Entrepreneurship Spirit Among Indian Youth. I am sure that you will be feel enriched with knowledge after completion of this webinar. I extend warm welcome to all present in the webinar. Before we proceed with our expert talk of the day, I would like to share with resource person of the day, Dr. Sachin Gupta ji and other participants about our college. Our college, established in 2003, best co-educational multi-faculty college, NAC accredited, registered under UGC 2F and 12B, managed by Govindgarh Educational and Social Welfare Trust, affiliated with Punjab University, Chandigarh. It offers BCom Honors, BBA, BCA, BA, MA English, MA Punjabi, and PGDCA courses. Along with formal courses, we are also offering informal and other certificate courses like English proficiency course, transcript and translation course. College updated with latest computer labs, mass communication lab, financial lab, English functional lab, well-stocked computerized library, IQAC and research cell. And we are also having SCS, REC and social entrepreneurship cell from MGNCRE, Alumni Association, DAPO unit, approved CA examination center, IGNO Studies Center, NCC and NSS unit. You glad to know that our NSS unit got Best NSS Unit Award from Punjab University in 2018 and 19. Our college not only good in academics, but also excel in sports to 1400 points contributed by college sports team to overall Maka Trophy awarded to Punjab University Chandigarh. College is exceedingly progressing under the able guidance of our visionary principal, Dr. Neena Seth Pajni ji. So I welcome you all in this webinar. Now it's my privilege and honor to introduce our resource person of the day, Dr. Sachin Gupta ji. So Dr. Saab is having a very big past achievements. I try to summarize those. अगर मैं उनको पढ़ना शुरू करूंगा तो पूरा वेबिनार सर की अचीवमेंट्स वो पढ़ते पढ़ते निकल जाएगा. So My pleasure. kindly pardon sir if I left something. So My pleasure. thank you sir. Dr. Sachin Gupta has a brilliant academic record. He has earned his doctorate degree from Department of Business Administration, University of Rajasthan, Jaipur. He completed his dissertation research during his MPhil degree on the topic NGO's role in developing economic condition of Rajasthan state from Department of Business Administration, University of Rajasthan, Jaipur. He completed his postgraduate degrees, one in Master of Commerce from University of Rajasthan, Jaipur, and another in MBA Finance from Rajasthan Technical University, Kota. Dr. Gupta cracked UGC NET exam in management twice, June 2012 and December 2012. Dr. Gupta completed Executive Development Program in Advanced Financial Management from XLRI Jamshedpur.
did postgraduate certificate program in finance from IIM Indore, completed UGC sponsored diploma program in IFRS from Ramanuj College, University of Delhi, in association with IAA, that is All India Accounting Association, NCR chapter. His professional activities include roles as associate editor, editorial board member, advisory board member, and reviewer for many journals and conferences. He has been invited as chief guest, resource person, keynote speaker in many reputed universities and colleges. For his praiseworthy contribution in academics, he has been conferred with many awards, recognition, and appreciations. His sincere and committed efforts received huge round of applause from eminent personalities, including MHRD and AICTE chairman. Dr. Gupta has been awarded by Best Poster Presentation Award along with Best Paper Presentation Award in 11th and 12th January 2015. He has written more than 50 research papers in various journals and international journals and national journals. Along with that, he has presented papers in more than 25 national and international conferences and seminars. He has also contributed chapters for various edited books. Dr. Gupta is also authored of many books. He has authored 5 books, respectively: Tourism Marketing, Managing Socio-Economic Development of Rajasthan by NGO, Project Management for MBA 4-semester student, International Trade and Finance, Business Economics for BBA, BCom and MBA students. He has directed a number of research projects, works in different areas of management. He has directed a number of research proposal, etc. Dr. Sachin Gupta has handled number of administrative assignments successfully and made exemplary contribution through his dedicated, committed, and innovative approach with high integrity. Dr. Gupta delivered more than 100 extension guest lectures in India and abroad. He is continuously engaged in the research work. His expertise in journal management and all financial subjects. His core subjects are finance, entrepreneurship, and innovations, etc. Along with that, he has keen interest in academics and research activities. Prior to joining Mohanlal Sukhadia University, Udaipur, Dr. Gupta has served as associate professor and head chairperson, doctor research in JECRC University, Jaipur, Rajasthan, assistant professor and program coordinator, MBA executive, FMS, IAS University, Jaipur, visiting faculty in University Commerce College, University of Rajasthan, Jaipur, visiting faculty in PTU Master Somnath Technical College for BSc and MSc Hotel Management students. 5 PhD research scholars have been conferred PhD doctor degree in under guidance of Dr. Gupta, and Dr. Gupta had also guided 1 MPhil dissertation. Currently, there are 4 research scholars are working under him as registered PhD students. So dear participants, the list is not endless. I just read few of them. List is very vast. So Dr. Gupta, pardon me if I skip something. He is life member of All India Accounting Association and ISTD, associate member of Society for Capital Market Research and Development, and membership of ACLT, IAAC, and Asia Pacific Institute for Event Management, UK. So on a final note, he is also a fascinating individual and we are very grateful for his presence among us today. So dear sir, स्वीकार आमंत्रण किया आपने, रखा हमारा मान, स्वीकार आमंत्रण किया आपने, रखा हमारा मान,
कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। So Thank you. without further ado, please join me in welcoming Dr. Sachin Gupta ji. Over to you, sir. Thank you, Rajesh Welcome, sir, sir. for the nice broad introduction of mine. And I must congratulate to you for all the efforts that you are doing from the very first day. Am I audible Thank you, to all sir. of you? Yes, sir, you are audible. What I am watching since so many days that you are the person who are doing each and everything regarding taking my presentation and following each and every activities related to this webinar. So I must congratulate to you first that you are doing a fantastic job for the sake and prestige of the college first and for the welfare of the student. Thank है you, ना? sir. Thank you so much, sir. प्रिंसिपल मैडम को भी मैं बहुत अपने होल हार्टेडली थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर इनवाइटिंग मी सो दैट आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द स्टूडेंट. So if I could check my PPTs, if it is there on the website, if it is screen. So will you please? So, sir, can I share? Yes, you may. Yes, sir. Have you Sir, shared please it? kindly check. Yes, sir, I shared. Just a minute. It is not being reflected. Just a minute. Yes. Yes. So my take on the topic is developing entrepreneurial spirit among Indian youth. So before starting this presentation, on the very first slide, Acha, tell me, this will be an interactive webinar. So now I request to each and everyone, please be interactive in this session because this is, I have already instructed that I'll have devote only 1 hour time with all of you. So please, my medium of communication will be English or Hindi or bilingual. Tell me, students. बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मुझे बताएं कि मीडियम शुड बी इन हिंदी और इन इंग्लिश और बोथ द मीडियम आई कैन कम्युनिकेट. This is for you students to please be interactive in the class. Yes, sir. Students giving the response, they requested you to communicate in both language, Hindi as well as English. So it's beneficial My for the pleasure. students. Very nice. Good. So जैसा कि ये टॉपिक है डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट अमंग इंडियन यूथ. So we all are Indian youth. I think I also consider myself among Indian youth because I am so much energetic and that's why I am here in front of you all. So developing entrepreneurial spirit among Indian youth. ये entrepreneurial spirit होती क्या है? What does it mean by? Suppose if I am into the process of incubating some ideas in my mind. मेरे अंदर कोई दिमाग में एक चीज आ रही है कि यार मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आई हैव टू एक्सप्लोर दिस वन विल बी दिस अप्रोच या प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी एप्लीकेबल होगी. तो कुछ चीजें जो हमारे अंदर चलती हैं बट बिकॉज ऑफ सम सर्टेन सर्कमस्टेंसेस बिकॉज ऑफ सम व्यू का वर्ड देखो I request each and everyone if you think that this is the important point which can be jotted down you can write it in your notebook. अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आप उसको लिखना चाहते हैं आप अपनी नोटबुक लेके बैठिए. प्लीज सिट विद कॉपी एंड पेन एंड इफ यू थिंक दिस इज टू बी रिटन यू कैन राइट इट डाउन. तो मैंने यहाँ पर बात की कि एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट क्या होती है. तो देखो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट हम सबके अंदर होती है. हम सबके अंदर एक छोटा सा एक बिजनेस पर्सन भी छिपा होता है. हम सब लोग हो सकता है कि हम सब लोग एकेडमिकली बहुत साउंड ना हो लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड एक इतना अच्छा बिजनेस परसेप्शन चल रहा हो जिसके थ्रू हम लाइफ में अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इंडियन यूथ में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट कैसे जनरेट हो दिस वेबिनार इज ऑल अबाउट इट. एंड राजेश शर्मा सर को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा. राजेश शर्मा सर ने रिक्वेस्ट किया कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा टॉपिक सोचें सजेस्ट करें जिससे कि बच्चे को पूरा इसका कंट्रीब्यूशन मिल सके और स्टूडेंट्स कैन थिंक बियॉन्ड द बॉक्स. तो इस कारण हमने ये सारा टॉपिक आप लोगों के लिए फाइनलाइज किया. देखो मैं आपसे कहूंगा कि हम सबका एक मिशन होता है हम सबका एक विजन होता है. जब भी हम लाइफ में आते हैं मैं कहता हूं कि मेरे अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई एम अ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. मैं बात करूं कि मैं एक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं
and I am in a government university, so my duty is not about only to take classes only. मेरी ड्यूटी केवल क्लासेस तक नहीं है. आई एम इनटू मल्टीफेरियस फील्ड्स. मैं कई फील्ड्स में हूं. आई एम इनटू बुक राइटिंग, आई एम इनटू रिसोर्स पर्सन इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेबिनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, सिंपोजियम्स. I write so many research papers, I write so many copyrights, I write so many patents. So what does it mean by this? Is all about entrepreneurial spirit among myself. कि I am not restricting myself towards only class. कि केवल एक टीचर का काम केवल क्लासरूम तक नहीं है, हमको भी आगे बहुत बढ़ना होता है. हमको भी नई नई चीजें जनरेट करनी पड़ती है, नए नए थ्योरम्स एक्सप्लोर करनी पड़ती हैं. क्यों? क्योंकि हम बच्चों के वेलफेयर के लिए कुछ काम कर सके. तो ये जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट होती है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन. हम यहाँ पे इंडियन यूथ की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि फर्स्ट क्रिएट अ मिशन इन योरसेल्फ. फर्स्ट क्रिएट अ विजन इन योरसेल्फ. विजन का हम अगर पीछा करते हैं ना, विजन और जो मिशन होता है उस विजन को पूरा करने के काम आता है. हम किसी भी विजन को अगर फॉलो करते हैं तो वो विजन एक दिन पूरा होता है. हमेशा विजन को फॉलो करिए, मनी का नहीं. अगर आपका विजन बहुत अच्छा है तो मनी अपने आप अर्न कर लोगे. अब यहाँ पर मैं आपको इकोनॉमिक टर्म इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट इज ऑल अबाउट जनरेशन ऑफ मनी, है ना. बीइंग अ कॉमर्स बैकग्राउंड प्रोफेसर, वी ऑल आर अबाउट टू अर्न मनी. हम सब लोगों को मनी अर्न करना है ना. So I am relating this topic, I am correlating this topic with econometric terms also, economic terms also. So मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज you should be quite passionate. आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि यस मुझे ये करना है, मेरा एक ये विजन है. और मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप पैशनेट होंगे, आप बहुत अच्छे विजनर, और तो मनी आपके पीछे अपने आप दौड़कर आएगी. देखो कई बार होता है कि हमें लगता है कि मैं एग्जाम में फेल हो रहा हूं, ये मुझे मालूम है कि आई विल फेल इन द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. सपोज आई हैव टू क्रैक आईएएस एग्जामिनेशन. मेरा ड्रीम था कि आई वांटेड टू बी एन आईएएस. मैंने उसके लिए आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. मैंने उसके लिए काफी मेहनत की, काफी प्रयास किए. आई डिड माई लेवल बेस्ट विच आई कुड हैव डन. मैंने उसके लिए पूरे प्रयास किए. तो मेरे मन में ये संकोच नहीं रहा, मेरे मन में ये दुविधा नहीं रही कि आई कुड नॉट पास दैट एग्जामिनेशन बिकॉज आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. पास होना ना होना वो एक अलग चीज थी, बट मुझे लाइफ में ये अफसोस नहीं रहा, ये रिग्रेट नहीं रहा कि आई डिड नॉट ट्राई एनी सिंगल एफर्ट. तो वही सारी चीजें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आती हैं कि अगर आप अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए कुछ चीजें फॉलो करते हो, कुछ उनका पीछा करते हो अपने ड्रीम्स का, तो आपको कम से कम ये होगा कि यस आपने कुछ आपने फ्रूटफुल किया. आपको एट द एंड ऑफ योर जर्नी, लाइफ जर्नी, ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार आपने लाइफ में कुछ एफर्ट्स नहीं किए. तो प्रयास, एफर्ट भले छोटा सा हो बट होना चाहिए. तो इंडियन यूथ से मेरी रिक्वेस्ट है, बिकॉज यू आर अ बडिंग एंटरप्रेन्योर, कि अपने अंदर इस स्पिरिट को जगा कर रखिए, अपने अंदर इस स्पिरिट को तेज कर रखिए, इसकी अलग जगा कर रखिए, सो दैट यू कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स द स्टेक एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. आप सोसाइटी को कुछ दे सको. बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडियन सोसाइटी, इंडियन टेरिटरी, दिस इज आवर ऑल ड्यूटी कि हम सोसाइटी के लिए कुछ पे कर सके. आपके अंदर जो भी आइडियाज आते हैं, जो भी आपके अंदर आइडियाज आ रहे हैं, उनको इंक्यूबेट, जो भी आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं उनको एग्जीक्यूट करना सीखिए. कि आपके अंदर अगर कोई आइडिया है तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. देखो सर, कैन आई हैव माय सेकंड स्लाइड? राजेश सर, कैन आई हैव माय सेकंड स्लाइड? Yes, sir. I am trying. Is it moving? On my screen, it's moving, but okay, sir. Sir, Yes, it's it is visible. being shown. It is not So being shown. on my screen, it's visible. Some network lag will be there. I am on It introduction. is not being shown. Not being shown. It is not getting displayed on my screen. Sir, I can share again. Yes. That's good.
because I have proper net connection. I don't think there is a problem at my residence because I have proper setup over here. So I don't think there is a net connection problem of my Sir, on side. our campus, Wi-Fi also working, but somehow it's working on my screen. Hmm. But when it's not moving on the sharing mode, So just wait, sir. Just I no share problem. it You can take again. your own time. Dr. Sachin, if it is comfortable, then you can share from your screen. Do you have Ma'am, this? I am trying to have a plan, but not being shared by my side. Also, I don't know why. Sir, we Okay, are okay. trying. So we will Just work wait on one that. minute. It will be sorted out soon. Sir, maximize the sir screen. Screen करिए वो इसको. बंद करके दोबारा करो. Sharing preference. Till then, I am going to interact with the student. Yes. Now, sir, it's visible. Are you able to see that? Not visible. Now it's visible. Ah, Participants are yes, it saying is it's visible now. It is visible. Hello? 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 Yes, sir, it is visible. Yes, sir. Thank you, sir. You are audible. Okay, should I continue? Yes, sir. Yes, yes. So there is some voice which is coming from the backside of yours. Kindly unmute yourself. Yes. So can I start? Yes, sir. You continue. We muted the Yes. person. So in continuation with the very first slide in which I was quoting the various facts about the entrepreneurship, हमारे एक fit होनी चाहिए, we can move forward. So now the term comes कि entrepreneurship in what is the actual meaning of entrepreneurship? I am just raising the question in front of you all, which be asked at the end of the session. So इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट जो होती है स्टूडेंट्स में, यूथ में, क्यों एक स्टूडेंट जो है, क्यों एक यूथ जो है वो इसको इतना अच्छे से जनरेट नहीं कर पाता, इतना अच्छे से कोप अप नहीं कर पाता. व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यूथ बाय व्हिच ही और शी फेसेस सम प्रॉब्लम दैट यस वी आर नॉट with this standard. Why? Because there is always a fear. Something like, suppose if I will start this venture, there is a possibility that I will not be able to run this business in a longer period of time. कई बार ये समस्या आपके सामने आती है. कई बार आपके पास प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स की, कि यू डोंट हैव सच टाइप ऑफ स्किल्स, सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट यू कैन इम्प्रेस समवन अदर्स. तो ये सोच सारी चीजें ये आती हैं विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, विद द पैसेजेस ऑफ टाइम. धीरे 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 आती है. फर्स्ट यू विल हैव टू मेक अप योर माइंड. देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पे अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है, अगर स्किल्स हैं, तो पीपल विल डेफिनेटली गोइंग टू लिसन टू यू, पीपल विल डेफिनेटली गोइंग टू लाइक यू. कोई भी चीज जो है वो एक सिंगल स्टेप से स्टार्ट होती है. तो किसी भी चीज को ड्रीम आउट करिए, उसको चेस करिए,
और जब तक वो ड्रीम फुलफिल ना हो जाए, प्लीज डोंट स्टॉप योरसेल्फ। मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट जो होती है, यही आपको अपने सक्सेस गेट पर, आपको कॉम्प्लेक्सिव लैडर पर ले जाने में हेल्प करती है। कैन वी हैव नेक्स्ट, राजेश सर? I am doing that. तो सक्सेस जो होती है, नेक्स्ट स्लाइड आप कर दीजिए। सक्सेस हमेशा कैसे आती है? सक्सेस हमेशा आती है अपने ड्रीम्स को चेस करने से, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने से। देखो, सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने कितना मनी अर्न कर लिया है। सक्सेस का मतलब ये होता है कि आपने कितने लोगों को कन्वर्ट कर दिया है, कितने लोगों की लाइफ में आप चेंज ला चुके हो। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज लाइक अ सोसाइटी क्रिएटर। कि आपका, आपके बिजनेस का सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, आपके बिजनेस का इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है, कर रहे हो अपने लिए, ठीक है, प्रॉफिट क्या कर रहे हो। तो अगर आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है, इट मींस यू आर डूइंग अ वेरी फैंटास्टिक जॉब। अब मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, जैसा कि मेरी स्लाइड में स्पष्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि कोई भी दिमाग में हमारे इनोवेटिव आइडिया है और उसको मैं इंक्यूबेट कर लूं, उसको मैं प्रैक्टिकली अप्रोच उसका कर दूं, अपने, मेरे आइडिया भी फ्रिक्वेंटली अगर चेंज हो रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम है, उस आइडिया को जो मैंने इन्वेंट करके प्रैक्टिकल मार्केट में लॉन्च किया है, उसमें मैं टाइम टू टाइम चेंज करती हूँ, उसको प्रैक्टिकल मार्केट में लेकर आ रहा हूं, तो इट मींस आई एम डूइंग समथिंग गुड, आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, है ना। क्राउड से हटकर मैं कुछ अलग काम कर रहा हूं, एंड आई एम डैम श्योर दैट मेरा बिजनेस विल बी सक्सेस इन नियर फ्यूचर। तो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या? एंटरप्रेन्योरशिप है टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने कुछ भीड़ से अलग, अब सपोज आई एम अ ड्रीमर, और मेरा मतलब है कि आई डोंट वांट टू बी इन द क्राउड विच इज विद मी। जो क्राउड मेरे साथ है, मुझे उसके संग नहीं रहना, है ना। आई वांट टू सेपरेट, आई वांट टू क्रिएट अ सेपरेट वे फॉर माई सेल्फ। मुझे कुछ अलग करना है। तो मेरे अंदर जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं, जो भी क्रिएटिव मेरे अंदर थिंकिंग है, जो भी मेरे अंदर एबिलिटी है, जो भी मेरे अंदर इनपुट्स हैं, अगर मैं उनको एक रियल मार्केट में, प्रैक्टिकल मार्केट में ओरिएंट करता हूं, उस पर वर्क करता हूं, तो दिस हैव सम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट जो होती है, वो हमेशा कैसे कैरेक्टराइज होती है कि आपके अंदर इनोवेशन स्किल्स क्या है, आपके अंदर रिस्क कैपेबिलिटी क्या है। देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है रिस्क लेना। और हम लोग के स्टूडेंट हैं, हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। देयर इज अ कोट इन इकोनॉमिक्स, देयर इज अ कोट इन कॉमर्स, मोर रिस्क इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट। दुनिया में सबसे बड़ी रिस्क है रिस्क ना लेना। तो अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं और आप चाहते हो उनको इनकलकेट करते हुए उनको आगे प्रोसीड करना और उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करना, तो प्लीज ट्राई टू टेक मोर रिस्क एज मच एज यू कैन। रिस्क लेना सीखिए लाइफ में, और बिजनेस इज फुल ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। और मैंने अभी भी एक इंपॉर्टेंट लाइन कोट करी, उसको इन्वर्टेड कॉमास में आप लोग समझ लें। जिंदगी में सबसे बड़ा जो आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, वो रिस्क लेना हो चाहिए। अगर आप लाइफ में किसी तरह की रिस्क नहीं लेते हैं, इट मींस यू आर नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट। आप वही क्राउड के साथ हैं, आप वही क्राउड के पार्ट हैं। नेक्स्ट स्लाइड। राजेश सर, नेक्स्ट स्लाइड। Sir, it's visible within 1 or 2 minutes. So this is all about entrepreneurship. Keep exploring new avenues. हमेशा नए नए रास्ते चुनिए, नई चीजें देखिए। किसी को जो अपने बिजनेस में जिन्होंने बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव करिए, उसको चुनिए। तो चूज समथिंग यूनिक, कुछ ऐसा चुनिए जो यूनिक हो। देखो, अब आप देखिए ना, गूगल का आप बात करिए। गूगल टीचेस यू एनीथिंग। गूगल कैसे एक आइडिया क्रिएट हुआ कि नाउ देयर इज नो नीड ऑफ टीचर्स, स्टूडेंट अपने फोन पर सारी चीजें देख लेते हैं। तो ये आइडिया भी तो किसी ने इंक्यूबेट किया होगा ना। तो चीज है, तो अपने अंदर ट्राई टू फाइंड आउट सम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स अमंग योरसेल्फ एंड देन क्रिएट अ पाथ फॉर योरसेल्फ। कोई आपको पीछे आपको पुल नहीं करेगा, कोई आपको पुश नहीं करेगा। यू हैव टू क्रिएट अ पाथ फॉर योरसेल्फ ओनली।
Now the term comes digital entrepreneurship. Sir, you can change this slide. Digital entrepreneurship क्या होती है? Suppose I am a businessman. मेरा एक बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन आई एम नॉट सो मच टेक्नोक्रेट पर्सन. मैं एक टेक्नोक्रेट पर्सन नहीं हूं. मेरा बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ उदयपुर सिटी, आई एम डीलिंग इनटू सच प्रोडक्ट्स which are being manufactured by the local artisans of उदयपुर. यहाँ के लोकल आर्टिसंस हैं उदयपुर के, वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लाइक पॉटरी डिजाइन, है ना, लाइक बेडशीट्स, लाइक एनी हैंडीक्राफ्ट. तो मैं बीइंग अ रेसिडेंट ऑफ उदयपुर, बिकॉज राजस्थान इज नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट आइटम, लेकिन आई डोंट हैव सच टाइप ऑफ टेक्नोक्रेसी. मेरे पास टेक्नोक्रेसी नहीं है. आई डोंट नो हाउ टू डील विद ऑनलाइन बिजनेस, है ना. और मेरे को अपना बिजनेस जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी से इंटरनेशनल बाउंड्री में लेके जाना है. सो इन दिस कंडीशन डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप विल बी वेरी यूजफुल फॉर मी. So by the side of digital entrepreneurship, what I will do, I'll create my website, I'll display my products on the website, I'll put my contact number over there. मैं वहां पे अपना contact number दूंगा, एक chat box बनाऊंगा जिसमें कस्टमर्स की जो क्वेरीज आएंगी वो रिसीव करूंगा और टाइम टू टाइम उनको फुलफिल करूंगा. और इसमें एक बैंक होगा, अगर मेरा अच्छे से सेलेबल होता है तो वहां सोचिए पावर ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कि आप देखिए ना कोविड-19 की क्या कंडीशन है. आजकल सारा बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है. आप हैव यू सीन ओलास एंड उबेर्स, एनी बिग शॉप्स, वो अपना सारा बिजनेस किससे करते हैं? अपना सारा बिजनेस दे यूज्ड टू डू विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप. सारा बिजनेस डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से करते हैं ना. दे डोंट नीड एनी टाइप ऑफ वेरी बिग शॉप्स. आप ओला उबेर को देखिए, आप जोमेटो को देखिए, आप स्विगी को देखिए, ये सारे बिजनेस कैसे रन हो रहे हैं? with the help of single only simple phone, smartphone. आप ऐप डाउनलोड करिए, कार को बुलाइए, एंड दे पीपल आर गेटिंग रिचर एंड रिचेस्ट. तो एक छोटा सा आइडिया जो इंक्यूबेट करा और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से उस आइडिया को उन्होंने नॉट ओनली डोमेस्टिक टेरिटरी, इंटरनेशनल ऐप बाउंड्री एक्सप्लोर कर दिया. आजकल आप देखिए कितने सारे गिफ्ट वाउचर्स जो हैं, हमें किसी की बर्थडे है, फॉर एग्जांपल 27 सर को राजेश सर का बर्थडे है, and if I want to send gift to Rajesh sir, so what I can do, I can contact to any online business store कि भैया फलाना is the item which is really appreciable and ये सर की चॉइस का है और इसको हमें सर के यहाँ पहुंचाना है. I have the address of sir, मैंने वो एड्रेस डिस्क्रिमिनेट कर दिया, and on the particular date and particular time period that item will be delivered to sir. ये क्या है? ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की एक पावर है. तो अगर हमारे अंदर कोई ऐसा बिजनेस स्पिरिट है, हम सोचते हैं, और अभी आप देखना कोविड-19 में तो यू कैन सी सो मेनी एग्जांपल्स. आई हैव सीन, आप देखिए कि आजकल हमने एक बात सुनी है, हम आईओटी की बात करते हैं, हम इंटरनेट ऑन थिंग्स की बात करते हैं. आप देखिए कि अगर आपको लाइव बेड रिकॉर्ड्स भी देखना है हॉस्पिटल्स में, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑन थिंग्स आप पर्टिकुलर हॉस्पिटल का बेड सिटिंग भी देख सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में कितने बेड्स अभी अवेलेबल हैं. अगर हमें पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप देखना है तो आप घर बैठे ये देख सकते हैं कि O+, A+, AB या A नेगेटिव, B नेगेटिव किस टाइप का ब्लड अवेलेबल है या नहीं. तो ये किसकी पावर है? ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की पावर है. समझ में आ रहा है? आप देखिए दिल्ली में क्या रहता है. दिल्ली में इट इज बीइंग हर्ड दैट दिल्ली में फॉग बहुत होता है एट द टाइम ऑफ विंटर सीजन. तो मैंने एक पेटेंट डेवलप किया. मैंने उस पेटेंट में क्या बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वहां पे मशीन इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं कि वो वहां की लोकेलिटी में आने वाले फॉग को स्कैटर करें विद द हेल्प ऑफ पाइप्स. क्योंकि अगर फॉग स्कैटर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी तो रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे, रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे तो सोसाइटल इंपैक्ट पड़ेगा, सोसाइटल इंपैक्ट अच्छा होगा तो इकोनॉमी जनरेट होगी, और इकोनॉमी जनरेट होगी तो हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होगा, और हमारी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है तो हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में काउंट होगी. तो ये सब किसकी पावर है? ये सब पावर है डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की. सर नेक्स्ट स्लाइड. तो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डिजिटली वे में दूर तक, कहते हैं ना, इंटरनेशनल बाउंड्री में भी अपने मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो. फॉर एग्जांपल सपोज मुझे देना है कि मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से लॉन्च होते हैं,
पर मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका नहीं जा रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट्स आर नॉट बीइंग रीच्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो अगर मेरे अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है एंड इफ आई वांट कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छे से सेलेबल हो, तो बीइंग अ यूथ ऑफ द कंट्री, backbone of the nation, this is my ultimate liability to be technocrat myself towards this duty. और इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज फंड्स इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। यू नीड some technocracy skills, you need some entrepreneurship skills, you need some digital environment, and with the with the friction of seconds, you can explore your business up to any of the limit. तो यंग इंडिविजुअल्स जो होते हैं, जो एजुकेटेड पीपल है हमारी सोसाइटी का, आप लोग, आप सब स्टूडेंट्स जो कि मेरी क्लास अभी अटेंड कर रहे हैं, मेरा जो कि सेशन अभी अटेंड कर रहे हैं, हम हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। वी ऑलवेज टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डू यू थिंक हाउ इट कैन बी अचीव्ड? सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल बातें करने से नहीं आता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज से। कोर कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं? कोर कॉम्पिटेंसीज होती हैं द स्किल्स that we possess individually. For example, suppose I am a very good communicator, I can speak very well in front of audience, I don't have a stage fear. So with the help of my core competency sorry, with the help of my core competency, I can literate up to many people. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे बढ़ेगा? हमारी कोर कॉम्पिटेंसी से, और कोर कॉम्पिटेंसी से क्या बनेगा? कॉम्पिटेंट वन आएगा, क्रिएट होगी जो हमारी सोसाइटी होगी। तो अगर आपको इंडिया को एक डेवलप कंट्री में कन्वर्ट करना है, तो इट इज द रिस्पांसिबिलिटी यूथ और को ट्रीट करें, है ना? तो उसके स्टैंड ले। मैंने अभी भी बताया था कि कीप एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, है ना? और देखो कई बार क्या होता है लाइफ में, अब जैसे आप लोग सब ग्रेजुएट्स हो, कई बार हम कहते हैं कि सर मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है इस बिजनेस को रन करने का। तो मैं आपको बता दूं कि लाइफ इज नॉट अबाउट हाउ एक्सपीरियंसेस यू हैव, लाइफ इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस यू हैव। जरूरी नहीं कि आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो, 1 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन क्वालिटी एक्सपीरियंस वो है, तो आपके अंदर बहुत अलग जज्बा वो पैदा करेगा, एंड यू कैन क्रिएट वेरी गुड माइलस्टोन्स इन योर लाइफ, नॉट इन योर लाइफ, इन अदर्स लाइव्स ऑल्सो। और मैंने आपको पहले ही बताया था, मोर रिस्क इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट। जीवन में एक रिस्क लेना सीखिए, एंड द बिगेस्ट रिस्क क्या है? इज नॉट टेकिंग। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यूथ जो है, आप, इससे मेरी एक बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर जो भी एंटरप्रेन्योरशिप, डोंट शाई, आप कभी भी अपने अंदर शाइनेस महसूस ना करें। इफ यू फील, अपने टीचर से कंसल्ट करें कि सर नए नए आइडियाज को इंक्यूबेट करना। देखो आजकल तो अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी कह चुके हैं, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग योरसेल्फ, आई एम जस्ट कोटिंग हिज कोट, कि जरूरी नहीं कि दुनिया में सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिले। स्टार्ट थिंकिंग फॉर योरसेल्फ, नए नए आइडियाज को इंक्यूबेट करना सीखिए। और देखो लाइफ में मिस्टेक होती हैं, इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक, यानी आप अच्छे डिसीजन ही नहीं ले रहे हो, मिस्टेक ही रहती हैं। तो ट्राई टू टेक न्यू चैलेंजेस, मिस्टेक होती है तो उनसे सीखिए, आगे बढ़ते रहिए, फियर, अपने अंदर से फियर निकालिए। तो इन सारी चीजों से क्या होगा? सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन चीजों से क्या होगा? यू विल एक्सप्लोर योरसेल्फ, पैशनेट बनिए, पैशनेट बनिए कि यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। पैशनेट बनिए, रिसोर्सेज की चिंता मत कर दिए। अब कई बार क्या होता है कि जब हम पैशनेट होते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो ये भी क्या, ये पार्ट ऑफ ड्रीम्स है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आई एम अ वेरी ड्रीमर एंड आई एम अ चेजर ऑल्सो। मेरा लाइफ में ख्वाब था कि आई वांटेड टू बी एन IAS एंड आई डिड माय लेवल बेस्ट। When I was doing my BCom examination, I was the BCom gold medalist in my college. I did my MCom, I did my Phil, I did my PhD, I did my MBA. I did so many courses from one of the reputed institutions like IIM, Jamshedpur, XLRI. But I couldn't crack IAS examinations, and I was quite determined that one day I'll crack it. But no,
बट इट डजंट मीन दैट मेरे को इससे बहुत नेगेटिविटी आ गई. आई एम डूइंग a lot of things in my this field, academic field also. So आप एक ड्रीम चेजर बनिए, सपना देखना करिए. और देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप सपना देखना छोड़ देते हैं ना तो आप जीना छोड़ देते हैं. जैसा कि स्लाइड का नाम है ना, रोल ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर इन द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर पर्सन हु विल बी द फ्यूचरिस्टिक एंटरप्रेन्योर, जो कि इनोवेशन लाएंगे, जो कि रिस्क लाएंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, और जिनकी अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी के लिए होगी, और जिनकी अकाउंटेबिलिटी पूरी नेशन के लिए होगी. यू आर द नेशन चेंजर, यू आर द पिलर ऑफ द नेशन. कभी हम बात करते हैं फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की, हम सब बीकॉम कर रहे हैं, हम सब यूजी के स्टूडेंट हैं, हम कहते हैं कि फ्यूचर हम लोग प्रिडिक्ट करना है. तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का मतलब है फ्यूचर को क्रिएट करना, केवल सपने देखना ही नहीं. आपके अंदर जो इंट्यूशंस आते हैं ना, उनको डूबने मत दीजिए, अपने इंट्यूशंस पर काम करना सीखिए. एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर विली तो होती है किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करने की, उसके अंदर एक एबिलिटी तो होती है ना किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करने की. तो ट्राई टू बिकम लाइक दैट, उसकी बनिए. और ये जो मैंने नीचे एक बहुत अच्छी लाइन दी है ना, एंटरप्रेन्योर इज इक्वल टू, एक इक्वेशन फॉर्म में दी है, इनोवेशन प्लस रिस्क प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी. So this is the gist of all these slides that you have read so far. कि अगर आपके अंदर इनोवेटिव स्किल्स नहीं है, अगर आपके अंदर रिस्क नहीं है, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं जानते, लाइफ में अकाउंटेबल बनना सीखिए. ये आपके हर जगह काम आएगा. जीवन में एक गुरु बनाइए अपना. लाइफ में हमेशा एक गुरु होना चाहिए, जिससे आप एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिव सिचुएशन आप लाइफ में कुछ उनसे डिसीजन ले सकें, उनकी फुट स्टेप्स फॉलो कर सकें, और उनकी सीख से आप आगे बढ़ सकें. समझ में आ रहा है? सो दिस इज ऑल अबाउट योर रोल टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज यू आर द चेंजर ऑफ सोसाइटी. आप नेशन पिलर हो, स्ट्रॉन्ग पिलर हो, यू ऑल. द नेक्स्ट स्लाइड, राजेश सर. राजेश सर, नेक्स्ट स्लाइड. Yes, sir. Yes, sir. This slide or next one? Next one. Yes. This is about next slide. You can move to next one. तो अभी मैंने जैसे बात की कि you are the game changer. You people are the game changer, है ना? Because ultimately responsibility of society, ultimate responsibility of nation building is on your shoulders. Is on your shoulders. देखो हम एक व्यू का वर्ल्ड की बात करते हैं. व्यू का वर्ल्ड का मतलब नाम सुना है आपने? चैट बॉक्स में लिखिए व्यू का वर्ल्ड क्या होता है. चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग, व्हाट डू यू मीन बाय व्यू का वर्ल्ड? VUCA. व्यू का वर्ल्ड क्या होता है? यस, चैट बॉक्स में आई नीड योर आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय व्यू का वर्ल्ड? देखो व्यू का वर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं तो व्यू का स्टैंड्स फॉर, हियर वी स्टैंड्स फॉर वोलाटाइल, यू फॉर अनसर्टेन, सी फॉर कॉम्प्लेक्सिव, एंड ए फॉर एम्बिग्विटी. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, लिसन टू इट केयरफुली. व्यू का वर्ड, व्यू का मतलब क्या होता है? व्यू का मतलब, हियर वी स्टैंड्स फॉर वोलाटाइल, यू स्टैंड्स फॉर अनसर्टेन, सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स, एंड ए फॉर एम्बिग्विटी. अगर आपके अंदर आप व्यू का वर्ल्ड में डील करना चाहते हैं तो आपको यू शुड बी क्वाइट फर्म डिटर्मिनेंट. आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, क्योंकि देखो अभी सोसाइटी है ना बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, बहुत प्रोग्रेसिवली चेंजेस आ रहे हैं. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट यू विल सी, आप देखोगे कि सोसाइटी हैज नाउ टोटली चेंज्ड. कितने सारे चेंजेस लगातार आ रहे हैं. आप देखिए, एक चीज और देखिए कि ग्रेट प्रोडक्ट सेल देमसेल्फ. एक अच्छा प्रोडक्ट जो होता है ना, देयर इज नो नीड टू डू एडवर्टाइजिंग फॉर दैट प्रोडक्ट. वो कस्टमर्स को अपने आप रिटेन कर लेता है, कस्टमर्स को अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है. उसी तरह अगर आपके आइडियाज अच्छे हैं और आप में यदि विल पावर है तो यू कैन अट्रैक्ट अ वेरी गुड सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स. आपके अंदर वो एक कॉमर्स में एक स्ट्रेटेजी होती है, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग. सेगमेंटेशन,
टारगेटिंग, पोजिशनिंग, आपके अंदर वो होना चाहिए कि हाउ टू segment the product as per the various needs of consumers, and consumers can be bifurcated as per so many parts. It can be lower age consumers, it can be middle age consumers, it can be upper age consumers. टारगेट, उनको टारगेट करना as per their dreams और उनके मार्केट में अपनी चीज को पोजीशन कर देना। और मैं आपसे एक चीज बताऊं, हमेशा एक एंटरप्रेन्योर की ग्रेट चीज क्या होती है कि वो 10 टाइम्स फेल होता है लेकिन हमेशा उसको आगे सक्सेस मिलती है। द हार्डेस्ट पास्ट जो पार्ट है अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, दैट यू विल फेल 10 टाइम्स फॉर एवरी सक्सेस। जब बल्ब के आविष्कार जब हुआ था, फोन का जब आविष्कार हुआ था, एरोप्लेन का जब आविष्कार हुआ था, तो इनको सक्सेस ऐसे फटाफट नहीं मिल गई थी। द पीपल डिड अ लॉट ऑफ लेबर for the sake and welfare of the society, and after so many failures and attempts, they did their level best. Up, as per this slide, if we see कि what type of lack of entrepreneurship skills in youth, कारण क्या है? कई बार क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, बच्चों को ये बोल दिया जाता है कि बच्चों स्पोर्ट्स में कोई कैरियर नहीं है। सपोज बच्चा म्यूजिक में बहुत अच्छा कर रहा है, बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, पर हमारे सोसाइटी में टेंडेंसी है कि अगर आप एकेडमिकली रहोगे तो ही आप कुछ कर सकते हो। तो म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में या अदर किसी फील्ड में सोशल मेजर्स एक ये एंटी-फियर है, पेरेंट्स में भी है, सोसाइटी में भी है, तो इससे भी हमें कोप अप करना है। तो बीइंग अ यूथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस फियर से कोप अप करना, इस फियर को रिमूव करना। एजुकेशन सिस्टम इंडिया में किस तरह का है? एजुकेशन सिस्टम क्या है कि प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत कम है, सारा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कर रखा है कि आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे, एंड इफ यू सर नेक्स्ट स्लाइड, एंड इफ यू विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन यू विल बी पास एंड यू विल बी कन्फर्ड द डिग्री, और आपकी जो स्किल है वो उस डिग्री के बेस पर मानी जाएगी। तो ये चीज भी यूथ के अंदर एक फियर पैदा करती है। तो इन सब चीजों से बाहर निकलिए, इन सब चीजों को कोप अप करिए। कई बार फेलियर का वो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार फेलियर इतना ज्यादा आप पर हावी हो जाता है कि आप लोग उस चीज को फॉलो ही नहीं करते हो, आप चीज ही नहीं करते हो। आप जो कि यार एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस वेंचर में कैसे क्रिएट करना है, आई डोंट हैव सच टाइप ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, इन सब चीजों से उभरिए। ट्राई टू कॉन्टेक्ट विद मेनी पीपल एज मच एज यू कैन। अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने टीचर से बात करिए, एंड बिलीव मी, नो वन इज गोइंग टू डिनाई यू। If you are pure ethical, if your concepts are very good, very real, if you are proper honest person, everyone is going to help you out. Fear of criticism, बिल्कुल भी उपेक्षाओं से नहीं डरें। Anything can be done as long as you truly believe it. इस चीज पे ध्यान रखिए कि जो आप कर सकते हो उस पर ट्रूली बिलीव करते हुए वो काम करिए। आपको क्रिटिसिज्म से नहीं डरना है, आपको अच्छा बनना है, आपको दुनिया में कोई छोटा काम, कोई बुरा नहीं हो रहते हैं। व्हेन यू विल बी सक्सेस, मैं आपको बता रहा हूं, द क्राउड हु वाज योर क्रिटिसाइजर्स, दे विल बी विद यू वन डे। वो लोग ही आपके साथ होंगे, जो ये किसी भी फील्ड में देख लो, वेदर इट इज इन एकेडमिक्स, वेदर इट इज इन एनी बिजनेस और एनी फील्ड ऑफ योर प्रैक्टिकल लाइफ। द नेक्स्ट स्लाइड। माइंडसेट, देखो अपना माइंडसेट चेंज करिए। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो दुनिया में सो मेनी रिचेस्ट पीपल इन दी अर्थ, ऑन दी अर्थ, कई सारे वो हैं, रिच पीपल हैं, लेकिन कई कुछ ही लोग उनमें से ऐसे हैं जिनको प्रिविलेज है कि वो दूसरे लोगों के लिए कुछ चीज इन्वेंट कर रहे हैं। तो ट्राई टू बी वन ऑफ देम। देखो रिच लोग तो खूब हैं, वो पैसा कमाते हैं और अपना आराम से अपनी लेविश लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही हैं जिनको ये इन थिंग्स को इन्वेंट करने का प्रिविलेज मिला हुआ है ना? तो वो बनिए आप। मैंने देखा मिसिंग लीडरशिप क्वालिटीज, और लीडरशिप क्वालिटीज इनहेरेंट होती हैं, कई बार जनरेट भी होती हैं। अच्छी बायोग्राफीज पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए, है ना? ट्राई टू टेक चैलेंजेस, चीजों को अपनी ही तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये जो लीडरशिप क्वालिटीज है,
इनहेरेंट होती है, मैं मान रहा हूं, पर आजकल आप देख रहे हो कि देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स वेयर लीडर्स आर बीइंग मेड, तो वो एक अलग चीज है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं, ये आपके अंदर होनी चाहिए, सो दैट यू कैन क्रिएट समथिंग गुड फॉर द सेक एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की मैंने बात अभी इसलिए की है क्योंकि कोविड में हम देख रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ योर स्मॉल आइडियाज यू कैन डू वंडर्स। आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत है और आप अपना बहुत अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की बात करें, जैसा कि स्लाइड से है कि अब देखिए कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत लेट सोचना शुरू करा है ना। अभी गवर्नमेंट ने लेट 90s में बात करनी शुरू करी है। अगर हम देखें तो हमें आप लोगों का जज्बा चाहिए, यूथ एम्पावरमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, यूथ की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। ध्यान करिए कि डोंट ट्राई टू बी जॉब सीकर्स, है ना, जॉब क्रिएटर्स बनिए। क्या बनिए? जॉब क्रिएटर्स बनिए। मैं तो being a institute of being a faculty of a very good reputed institution, मैं तो यहाँ भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा प्रमोट करता हूँ कि ट्राई टू टेक इनिशिएटिव लेना सीखिए लाइफ में, और रियलाइज करिए कि कितना अनएम्प्लॉयमेंसी इंडिया में अभी बढ़ रही है ना। बिकॉज मैंने अभी बताया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि हर के पास सरकारी नौकरी हो, ये अच्छी बात है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज वी हैव अ लार्ज पॉपुलेशन इन इंडिया। लेकिन हमारे मोर एफर्ट्स से, हमारी एनर्जी से हम अच्छे जो स्टार्टअप्स हैं, अच्छे बिजनेस वेंचर्स हैं, वो हम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल से क्रिएट कर सकते हैं। तो वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आप क्रिएट करिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, ये जज्बा हमारे अंदर इंक्यूबेट होना चाहिए, ठीक है। और देखो ये मैंने बता दिया है कि रिस्क वर्सेस रिटर्न कि सबसे जो, सर नेक्स्ट स्लाइड, सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है एंटरप्रेन्योरशिप का वो होता है रिस्क वर्सेस रिटर्न। अब हम जैसे डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो अभी आपके मन में बात आ रही होगा कि यार मेरा ये बिजनेस है कि मैं ना कुछ अपना एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। तो ये चीजें आपको डिमोरलाइज करेंगी, बट आप इनसे कोप अप कर सकते हो। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको इनोवेशन की, बहुत ज्यादा बड़े सेटअप की जरूरत नहीं होती। यू नीड सम टेक्नोक्रेसी, और वो भी धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन डेवलप इन योरसेल्फ। और एक छोटा सा आपको स्मार्टफोन चाहिए होगा। अब जैसे मैंने आप लोगों के लिए कुछ इसमें एग्जांपल्स बताए हैं, मैंने बताया कि 5 यंग एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया जिन्होंने, अब जैसे तिलक मेहता है, तिलक मेहता का आपने नाम सुना होगा। तिलक मेहता ने क्या कर रखा है, ये यंगेस्ट, इसका फोटो इसमें नहीं आ पा रहा, आई डोंट नो व्हाई। ये बहुत ही 13 इयर्स बॉय है, और मुंबई डब्बा वालास, अब मुंबई डब्बा वालास की अगर आपने केस स्टडी सुनी हो, वो इंटायर मुंबई में अपने डब्बा वालास जो है वो लंच डिलीवरी का काम रहता है। तो इसने मुंबई डब्बा वालाज की तरह इस बच्चे ने 13 का है, इसने क्या करा है, लॉजिस्टिक बिजनेस स्टार्ट किया, और जो स्मॉल पार्सल है उसको पूरे बम्बई में, पूरी मुंबई में इसने डिलीवरी का काम किया। आप सोचिए। तो वी शुड टेक सम इंस्पिरेशन फ्रॉम तिलक। He has only 13 years of age and he is called the youngest entrepreneur in India. अभी बच्चे लिख रहे हैं कि yes sir, I am feeling very motivated. So I am very much happy that you are feeling very motivated. I am very much happy. तो ये जो चीज है, नेक्स्ट स्लाइड सर, ये जो चीज है ये हमें इंस्पायर करती है आगे बढ़ने के लिए, है ना। और आप सोचिए 13 ईयर का बच्चा जब इतना अच्छा कर सकता है तो वाई वी शुड नॉट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका फोटो देखिए, कृष्णित अरोड़ा। कृष्णित अरोड़ा जो है वो 26 इयर्स के हैं, 8th क्लास की एग्जाम में फेल हो गए थे, ड्रॉप आउट हो गए थे, डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लिया, अगेन फेल हुए, 12th की क्लास पास नहीं कराई, लेकिन इतना ज्यादा थे अपने ड्रीम के लिए, ड्रीम थे कि एट द एज ऑफ 19 उन्होंने अपनी खुद की एक एथिकल हैकर्स के रूप में अपनी कंपनी शुरू करी, जिस कंपनी का नाम माना गया टीएससी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। आप सोचिए। और इनकी कंपनी जो है
वो नेशन बिल्डिंग का काम करती है, जो कि क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पंजाब गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट के संग काम करती है। आप सोचिए। तो ये नहीं सर, नेक्स्ट स्लाइड। लाइफ में कई सारे चेंजेस आते हैं। मैंने बताया कि यू शुड बी in that list of person who are doing something to someone else. Sir, next slide. मैंने बताया ना कि there are lot of richest people here in the world and very few people who have the privilege to getting something or inventing something for others. So you should be one of them. अब देखिए ये गर्ल जो है श्री लक्ष्मी सुरेश, जो ई डिजाइन एंड 10 लोगो बिजनेस में काम करती है। आप देखिए यंगेस्ट सीईओ है ये लड़की और एक वेब डिजाइनिंग का काम करती है। तो ये लोग क्या हैं? दे आर सर, नेक्स्ट स्लाइड, दे आर बर्निंग एग्जांपल्स ऑफ सोसाइटी, है ना? एंड बाय द हेल्प ऑफ दीज एग्जांपल्स वी कैन क्रिएट समथिंग, अ न्यू पाथ फॉर ऑल ऑफ अस, है ना? हम दूसरों के लिए लैंडमार्क्स बना सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, लाइफ में अगर दूसरे को आप इंस्पायर कर रहे हो तो यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द सेक एंड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। स्लाइड, ये चीजें हैं। तो यू शुड बी वन ऑफ देम हु कैन इंस्पायर अदर्स। रोहित कश्यप मैथ्री स्कूल जिसने क्रिएट करा, कितना मतलब आप ये देखिए कि इस बच्चे ने इतना अच्छे से उस स्कूल को क्रिएट करा। यंग मतलब एट द यंग एज ऑफ 14 उसने एक एंटरप्रेन्योरशिप के स्कूल को क्रिएट करा, जिसमें कि क्रिएटिव माइंड को जनरेट किया जाता है, जिसका स्कूल का नाम था मैट्रिक स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आप सोचिए। So these are the burning examples of the society. These are the burning examples of the nation. The next slide. So यहाँ स्लाइड आ रही है। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अपना हमेशा ओरिएंटेड माइंडसेट रखिए, है ना? आप हमारे इंडिया की यूथ हो, आपके अंदर एक लीडरशिप जिम्मेवारी है, आपके अंदर वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जिम्मेवारी। अब जैसे मैंने डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्यों लिया? बिकॉज मैंने वो कोविड सिचुएशंस को देखते हुआ, क्योंकि अभी आप देखिए ना, बाहर कोई भी शॉप्स खुली नहीं रहती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मोड एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट अप योर बिजनेस। अभी आप देखिए, मैं कई लोगों को देखता हूँ, दे आर मतलब सफरिंग फ्रॉम सो मेनी प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कि सर हम अपने बिजनेस को सेल आउट नहीं कर पा रहे। अरे क्यों? अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाकर अपने बिजनेस को, आप एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करिए, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करिए, अपने प्रोडक्ट को घर बैठे सेल करिए। तो ये जो फैक्टर्स है ना, आपकी एम्पावरमेंट को हिंड्रेंस नहीं करते, आपके लिए एक मोटिवेशन जनरेट करते हैं, आपके अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं, है ना? तो ये सारी जो चीजें हैं आपको आनी चाहिए। और मैं इसी चीज से अपने इस लेक्चर को खत्म करूंगा, बिकॉज आई हैव गिवन ओनली 1 आवर टाइम और 3 बज चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। ये ध्यान रखिएगा। विनर्स, मैं अभी आपको वापस रिपीट कर रहा हूं, विनर्स नेवर क्विट, जीतने वाला कभी भी क्विट नहीं करता है, एंड क्विटर्स नेवर विन, और छोड़ने वाला कभी नहीं जीतता है। तो इस जज्बे के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, try to think beyond the box. Thank you all, and I here invite queries from all of you. Please be interactive, and if there is any query by your side, kindly ask me. मुझसे पूछिए। Yes. Thank you, sir, for this wonderful and crisp lecture. That's very beneficial and helpful for the students. Yes, sir. Nancy ने लिखा है कि lack of women in entrepreneurial field. Yes. So Nancy, here Yes. I would like to clear this thought, because this is absolutely wrong. कि lack of women in entrepreneurial field, आजकल women बहुत अच्छा कर रही हैं। Have you heard about the name of Indra Chandra Kochar, who was the former chairman of ICICI Bank? तो उसने एंटरप्रेन्योरशिप कभी उसमें नहीं होता कि केवल आप बिजनेस फील्ड में देखें। आप देखिए कि चंद्रा कोचर ने अपना बिजनेस सेटअप, अपने बैंक का बिजनेस सेटअप एज कंपेयर टू गवर्नमेंट बैंक कितने अच्छे से रन अप किया, एंड शी वाज वीमेन। और आपको चंद्रा कोचर की मैं एक स्टडी बताता हूं
चंद्रा कोचर वाज नॉट हाईली मतलब बहुत ज्यादा एडवांस्ड नॉलेज उनको नहीं थी बैंकिंग सेक्टर की, बट व्हेन शी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, उनके हस्बैंड उनकी मदर के घर पर थे और उनके मदर ने उनको चंद्रा कोचर को जब ये अपॉइंटमेंट मिला तो चंद्रा कोचर अपने मदर के घर पर आके बोलती है कि मम्मी आई वांट टू गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व इन अ बैंक। तो और उसकी मदर ने बोला कि बेटा आप जाके पास से अभी दूध ले आओ। तो उसको बड़ा अजीब लगा कि मेरा तो इतना अच्छा न्यूज आपको मैं दे रही हूँ और आपने मुझे दूध लेने भेज दिया, मेरे हस्बैंड घर पर हैं, आप उनको दूध लेने नहीं भेज सकती थी। तो उनकी मदर ने उनको एडवाइस करा कि आप जो भी डेजिग्नेशन हैं, जो भी आपके पावर्स हैं, आप उनको घर के बाहर रख कर आइए, घर में यू विल बी कॉल्ड एज बेटी और बहू। तो आप उसकी पावर, वीमेन एम्पावरमेंट देखिए, घर में भी वो वीमेन एम्पावर है, मतलब घर में एज अ बेटी एज अ बहू यू आर प्लेइंग योर रोल, और घर के बाहर यू आर विद मैन, आप लोगों के संग यू आर, योर शोल्डर्स आर विद देम, आप लोगों के संग कंधा मिला के चल रहे हो। सो डोंट ट्राई टू मतलब अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। जैसा कि नैन्सी ने लिखा कि सर वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप में अभी कम रोजगार है, ऐसा नहीं है, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन देयर करियर ऑल्सो। आप देखिए ना आजकल तो पेट्रोल पंप पे भी कितनी, आई हैव सीन सम ऑफ द पेट्रोल पंप्स इन जयपुर राजस्थान, वन पेट्रोल पंप एक वहां पर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेट्रोल पंप वेयर ओनली वीमेन वर्कर्स आर देयर। तो दिस इज ऑल अबाउट वीमेन एम्पावरमेंट। नहीं, इसमें भी नैन्सी कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता। अगर आपके अंदर, मैंने बताया कि वो जज्बा है, इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, देन प्लीज डोंट ट्राई टू टेक मतलब ये छोटे छोटे माइंडसेट में इन्वॉल्व होना बंद करिए, है ना। यस, करण ने लिखा है ना, डेली वीमेन आर टेकिंग ओवर कार्स, सो व्हाट इज दिस? दिस इज वीमेन ड्राइवन फोर्स, दिस इज वीमेन एम्पावरमेंट। आप देखिए ना, ये चीजें होती हैं। यस, सो आई वांट मोर of you. You can jot it Yes, down sir. in the chat box. Yes, sir. There is one question from Professor Brinder Kumar. He want to ask, kindly provide list of the institute which provide digital assistance to new business ventures, especially in remote areas. Just like we are in rural areas and the student who want to start their business, what type of institute they can get training from there? Okay, very good question. So there are the same which you can take training, because अभी कोविड में आप देख रहे हो कि ऑनलाइन बहुत चल रही है। Here one of the very biggest and very good institution which is known as EDI, Entrepreneurship Development of India, which is in Ahmedabad. तो आप अहमदाबाद, EDI अहमदाबाद की वेबसाइट विजिट करें, वहां पर एक मिनट, ये नैन्सी के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। I'll quench your query नैन्सी, just wait a minute. So EDI अहमदाबाद जो है, वहां पर आपके लिए बहुत सारी इस तरह की ट्रेनिंग्स हैं कि while sitting at home you can be trained for some entrepreneurial ventures. और EDI अहमदाबाद के अलावा आई थिंक वन ऑफ द वेरी गुड इंस्टीट्यूशन विच इज इन नोएडा, निस्बत नोएडा इज देयर। तो वहां पर भी आप अगर उसकी वेबसाइट पर भी गो थ्रू करोगे, so you can take some relevant information over there. So Nisbat and EDI Ahmedabad, I think these are the two prestigious institutions through which you can get some important training over there. I think I am fruitful for this query. Yes, sir. Yes. Sir, there is another message from Nancy that is, owing to rapid changes in international policies and national schemes, just can't read that. Scheme, the opportunities are changing, how to predict them and work upon them. Nancy, I would like to clear this doubt of yours कि जो रैपिड चेंज इंटरनेशनल पॉलिसीज में होते हैं ना, और जो नेशनल स्कीम्स आती हैं, वो चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, नहीं आते हैं। तो फर्स्ट ट्राई, आप सोचिए उसको, आप प्रैक्टिकल मार्केट में लॉन्च करके, और प्रैक्टिकल मार्केट में लॉन्च करने के बाद आप उसको एज पर सिचुएशन, एज पर द करंट सिचुएशन चेंजेस, आप चेंजेस करते रहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी है ना, वो फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं होती। एंड और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, बिकॉज आपने वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी, वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा सब्सिडी और बहुत ज्यादा ग्रांट्स भी मिल रहे हैं।
और अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कई सारी स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया और बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ मतलब देश बढ़ाओ वाले कई सारी पॉलिसीज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट की हैं. सो बाय दीज policies and frameworks, you can explore your business up to any limit. Are you getting this? Yes, Karan, there are so many universities who are providing, MET universities also providing this course of, yes, there are so many private universities as well, those who are providing this type of entrepreneurship training to different people who are having different type of entrepreneurship skills and needs. But these are the two which I quoted, that EDI Ahmedabad is one of the biggest institute and one of the premier institute in entrepreneurship training, and NIST is also one of them. Yes? Yes, sir. There is appreciation message for you, but no other queries. So now I would like to invite our Honorable Principal Ma'am, Dr. Neena Seth Pajni ji, a multi-faced personality, donning multiple hats on as NAC Assessor, President of Punjab University Sports Council, North Zone Vice President of Association of Indian College Principals, and active members of various professionals and academic bodies, for enlightening us with her valuable insights. Over to you, ma'am. Thank you, Professor Rajesh, and I am thankful to the resource person. Am I audible? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. There was some signal break in between. So I suppose mighty thanks to you, Dr. Sachin Gupta ji. Very elaborative and informative deliberation we have today, and thanks for sparing time. I can understand you have busy schedule over there at the university. So मेरा जो पर्पस था पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स ये करवाने का, इस पे लेक्चर करवाने का, वो ये था कि आप अवेयर हो कि कौन सी सेट ऑफ स्किल्स चाहिए, वैल्यूज चाहिए इस तरह डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. तो डॉक्टर सचिन गुप्ता ने बहुत अच्छा आपको बताया, और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ पार्टिसिपेंट्स की. आज आप बहुत इंटरेक्टिव रहे, आपने क्वेश्चन पूछे. रादर द आई कांग्रेचुलेट एंड अप्रिशिएट द रिसोर्स पर्सन बिकॉज योर deliberation made them to ask the questions. It was very interesting and interactive talk. And जो आपने entrepreneur की बात की थी, it consists of like innovation, risk, responsibility and accountability. So जो क्वेश्चन पूछा था नैन्सी गुप्ता ने, हाँ, जो नैन्सी गुप्ता आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो अगर ये सारी स्किल्स हैं तभी आप एंटरप्रेन्योर या बिजनेस में कर सकते हैं. रिस्क उसका एक पार्ट है, रिस्क के साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी आ जाती है. और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप डिजिटल लेवल पे करना चाहते हैं तो कंपटीशन इतना है कि उसमें इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी होनी ही चाहिए. अगर आप अपने में ये गुण पाते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं. एक करण बच्चे ने कहा था that our college should have. So of course अगर आप सब करना चाहते हैं तो इनफॉर्मल मोड में हम उसे स्टार्ट कर सकते हैं. उसके वेरियस पार्ट्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिजाइनिंग, वेरियस पार्ट्स डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो चाहेंगे हम उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में करेंगे. इससे पहले भी जो दिसंबर में हमने इंटर्नशिप की थी on blog writing, content writing and social media marketing, that was also part of this digital entrepreneurship. और जो नैन्सी गुप्ता बात कर रही थी विमेन एंटरप्रेन्योर की, तो बच्चों मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. हम सब देखो पंजाब में रहते हैं, और अगर आपको पता हो कि इस साल जो पद्मश्री 26 जनवरी को मिला था, 2 विमेन को पंजाब में से मिला था. एक तो आपके लुधियाना से मिसेस रजनी ट्रैक्टर हैं जो कि बेकरी के बिजनेस में इतनी आगे चली गई हैं कि उन्हें पद्मश्री मिला है. और चलो उनका तो फैमिली बिजनेस था, शी बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, कॉर्पोरेट फैमिली. पर दूसरी चीज आप देख के हैरान होंगे कि पटियाला से एक लाजवंती है जो तिरुपति में रहती है, वो फुलकारी जो एम्ब्रॉयडरी है फुलकारी, उसके बिजनेस को इतनी ज्यादा कंट्रीज में ले गई हैं कि उन्हें पद्म
पद्मश्री मिला है। और अगर आप उनका फॉर्म देखें, मैंने उनको बुलाया था यहाँ, हमने विमेंस डे बनाया था, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने ऑनलाइन उनकी इंटरव्यू भी ली हुई है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन है बंदे में, वो रिस्क ले सकता है, वो ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो इतना क्रिएटिव है, उसको अपनी स्किल पे बहुत भरोसा है। ये करने के बाद वो बंदा ना पद्मश्री तक पहुंच गया। तो ये दो एग्जाम्पल आपके पंजाब से हैं, मतलब कि गोविंदगढ़ के आसपास विद इन पेरिफेरी ऑफ 45 किलोमीटर, दो लेडीज हु गॉट द पद्मश्री। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जो आप वुमेन की बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। कुछ करके दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और इससे अच्छा कोई टाइम नहीं है। देखो, आप घर के कंफर्ट जोन में बैठकर क्लासेस लगाते हो और आप इतने ज्यादा एफिशिएंट हो गए हो डिजिटल यूज के, इतने पावरफुल डिवाइसेस है आपके हाथ में, मोबाइल, और आपको बहुत स्किल्स आ गई हैं जो कि वैसे नहीं आती। तो आप आजकल कुछ भी कर सकते हो। हाँ, उससे रिलेटेड जो स्किल्स हैं, वी आर रेडी टू डू ऑल द प्रोग्राम्स इन इनफॉर्मल मोड, सब्जेक्ट टू आप सब इंटरेस्ट दिखाएं और उसे करना चाहें। और बहुत टाइम लिया आपका डॉक्टर सचिन गुप्ता जी, एंड thankful to the Unifest family. You are just like my younger brother from the Unifest family. Thanks for sparing time and for raising all the enthusiasm, queries and awareness among my students. You are a seasoned scholar. Mighty thanks for this wonderfully informative session. Thank you so much. We are honored to have you here, and sometimes do visit our college in offline mode also. Sure. All the best and have a healthy and stay healthy. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Allow us to sign off now. Thank you, ma'am. Thank you, sir, and all the participants.